Good morning, student. I am your computer teacher, and today we are going to start a new chapter, chapter number 3, Elevation on MS Excel. Okay, so basically in this chapter, we are going to start the very first topic is cell reference. Okay, so what is cell reference? Cell reference means a cell reference consists of number of letter and row number that combine together to form a cell. Okay, it means cell address is called cell reference, or these references are used in formulas, functions and chart and other applications. This is called as cell reference. Basically there are three types of cell referencing in MS Excel. First one is relative referencing, second one is absolute referencing, or last one is mixed referencing. Okay, so before discuss the complete topic, okay, first the things ki we have to clear the previous concept ki what is MS Excel or what is cell, what is active cell. Okay, so let us some revision of the previous classes. After that we will come to the this point. Okay, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इसके लिए हाउ टू स्टार्ट द MS Excel. तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, गो टू द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम. Okay, after that all program, after that go to the Microsoft Office. So this is Microsoft Office, or here you have to click it. Here you have to click it Microsoft Excel 2007. तो whatever the versions of 2007 you can use it. तो मैं देखता हूँ यहाँ पर ऑफिस पब्लिशर Microsoft Excel. So when you click these options, okay, Excel sheet will open in front of you. Got it or not? तो चलिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ हम पहले सबसे पहले क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ अस दीज आर कॉल्ड एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैब. दिस इज होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, formula tab, data tab and other tabs. Under the home tab there are the different options regarding to the wrapping the text, merge centers, and these are the sort and filter and other options is here. When go to the insert tab options, so these are the option picture box, clip art and the charts option. Okay, in the page layout option, page orientation, size, print area, a lot of the things are present, same as the formula tab. These are the options is here. Okay, data tab, review tab, other. So those are things we can learn one by one. Okay, according to the topic wise. Got it or not? Okay, so first of us we have to clear what is cell. My question is ki first of us we have to clear the topic what is cell. Okay, so cell means simple thing, the cross section area of rows and column. These are called as rows. This one is row 1, this one is row 2, row 3, row 4, row 5. Okay, so these are called as rows and these are called as column. These are called as columns. Okay, so cross section area means suppose that I am selecting this cell. Okay, so the name of this one is D column and fifth row, so the name of this cell is D5. Got it not? Same as if you selecting the any cell, suppose that I am selecting this cell, so F column first row, it is called as F1 cell, or in the name box it will be displayed, or it is called the formula box. Same as suppose that I want to select this cell, so the name is this cell is appear in the name box, it is H14. Okay, or how you will identify it? So this one is H column and 14th row. Okay, so this one is H14 and whatever the cell will selected, जिस भी cell को हम select करेंगे, this is called the active cell. तो here the active cell number is E12. Okay, तो this is the little bit introduction of these things. Okay, तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, तो इन टॉपिक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम फिर समझते हैं कि व्हाट इज सेल रेफरेंस. तो सेल रेफरेंस कंसिस्ट द कॉलम लेटर एंड रो नंबर. तो हम सही समझते हैं कॉलम लेटर एंड नो नंबर. तो कुछ टेबल मैंने बना रखी है जिसकी बेसिस पे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग, ओके, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स रेफरेंसिंग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ अस दोबारा हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं. ए सेल कंसिस्ट द कॉलम लेटर एंड रो नंबर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द सेल. तो सेल क्या था हमारे पास में कि रो नंबर और कॉलम हेडर दोनों को अगर हम कंबाइन करें, जैसे ये क्या है हमारा कॉलम और दिस वन इज रो, तो दिस वन इज कॉल्ड एज D5 सेल. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज कि
इट मीन्स दैट सेल एड्रेस इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस. तो सेल का एड्रेस क्या कहलाएगा? इट इज द सेल एड्रेस. सेल एड्रेस मीन्स दिस वन एड्रेस इज D7, this address is D10. okay, we are D column and 10th row. okay, तो after that क्या नाम? तो द रेफरेंस यूज्ड इन द फॉर्मूलाज फंक्शन चार्ट एंड अदर एप्लीकेशंस. इनको हम चार्ट्स में, फंक्शंस में, एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस. अब रेफरेंसिंग में क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिव रेफरेंसिंग. तो कॉपी या फॉर्मूला फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय डिफॉल्ट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंसिंग. ओके, बिकॉज इन दिस रेफरेंस सेल ऑटोमेटिकली चेंज इट. समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट दीज थिंग नंबर्स. हमें क्या करना है? टोटल सेल कैलकुलेट करना है. तो सेल टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या है? दिस वन इज B4, B5, B6, B7, B8, B9. तो कोई भी फॉर्मूला लिखने का रूल्स आपने पहले भी सीखा था कि फर्स्ट ऑफ अस मेक द इक्वल साइन, आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ द B4 सेल, ओके, देन प्लस B5, ओके, देन B6. ओके, तो देखिए इस आप सेलेक्ट होता जा रहा है. देन B7, ओके, आफ्टर दैट B8, ओके, सो वन मोर सेल इज रिमेनिंग B9. ओके, तो B9 मीन्स कि जस्ट वी हैव टू गो टू द इन हियर, चूज द ऑप्शन ऑफ B9 ऑल्सो. इट मीन्स दैट ओके कि फॉर्मूला मीन्स इन फॉर्मूला बॉक्स V4, B5, B6, B7, B8, B9 हमने ये पूरी वैल्यू क्या करी? कैलकुलेट करी. और जैसे ही हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, ऑटोमेटिकली द आउटपुट विल कम. ओके, तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स. ओके, कि हाउ टू कैलकुलेट द सम. अब वी नॉट नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला इज हेयर लाइक दैट. Here is C4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C8 plus C9. In relative reference, just copy this cell. Right click किया हमने. Just choose the option of copy. Okay. और after that paste it here. आप इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर. Okay. तो automatically the 1300 is coming here. Okay. और formula automatically will change. C4, C5, C6, C7, C8, C9. I am not making this formula. Just I am copy this formula. कॉपी दिस वैल्यू एंड पेस्ट इट हेयर. जैसे ही मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया, फॉर्मूला अपने आप क्या हो गया? चेंज हो गया. दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंसिंग. कि व्हेन वी आर गोइंग टू when we have to calculate once formula we have to apply anywhere, copy this formula and paste it any of the places, formula references अपने automatically will change it. So it is called as relative referencing. Once again come to the definition, copy a formula from one location to another by default is called as relative referencing, because in this referencing cell, reference cell automatically change it. Got it or not? Okay. चलिए अब हम और फर्स्ट ऑफ अस यू हैव टू मेक सेम टाइप ऑफ द टेबल ऑफ दिस. ओके, मैंने जल्दी करने के लिए ये पहले टेबल्स बना ली है. आफ्टर दैट वी गॉट इन द स्टेप्स. ओके, चलिए अब द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज हियर, व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस. तो व्हेन वी डू नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल ऑन कॉपी द फॉर्मूला टू वन टू अनदर सेल. ओके, इसमें क्या है कि अगर हम एड्रेस चेंज ना करें किसी सेल का, ठीक है ना, तो दिस मेक टू द एब्सोल्यूट रेफरेंस और एड द डॉलर साइन बिफोर द कॉलम नेम एंड रो नंबर. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या है कि अगर हम किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, इफ वी डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एनी, ओके, और आफ्टर दैट वी वांट टू कैलकुलेट समथिंग. ओके, तो लाइक दैट कि जैसे यहाँ पर परसेंटेज इंसेंटिव कितना है? 10%. ओके, और डी, तो हम क्या करना चाहते हैं कि इंसेंटिव एवरी सेल 10% विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसिंग. हम क्या निकालना चाहते हैं? इंसेंटिव अमाउंट निकालना चाहते हैं. तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है B4, द V4 मीन्स दिस सेल. ओके, और आफ्टर द 10% मीन्स कि $1, इट इज कॉल्ड द लिफ्टिंग रेफरेंसिंग. क्योंकि B4 मीन्स कि 1000 का अगर हम 10% निकालेंगे, 1000 इंटू 10%, देखिए आप कैलकुलेट करिए कि हम 1000 का 10%, सिंपली 2000 का 10%, 15000 का 10%, 33000 का 10%, 1900 का 10% और 200 का 10%. तो केवल एक बार फॉर्मूला बुलाएं तो ये 10% आपका चेंज कहीं पर भी नहीं हो रहा है. वैल्यू क्या चेंज हो रही है आपकी? ये. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम किस तरीके से लिखते हैं कि डायरेक्टली वी हैव टू यूजिंग द इक्वल साइन, आफ्टर द इट इज़ द सेल ऑफ B5. ओके, दिस वन इज B5, तो वी आर राइटिंग द B5 multiply by this one is, this cell is $D $1, D1 cell है, तो we are use the $D
$1. So this value will not change it. तो then the answer will come 200. 2000 का 10%, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर से. If we round the 2000 into 10%, 10 divided by 100, it is 200. ओके, तो सेम थिंग, जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला. अब हम कॉपी करते हुए चले जाएं, रेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑटोमेटिकली विल कैलकुलेटेड. देखिए मैंने इसको कॉपी किया, देन कॉपी किया हमने, देन अगेन कॉपी इट, और आफ्टर दैट वी हैव टू दिस वन. ओके, तो देखिए फिर 2000 का 200, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली विल चेंज इट. B6, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है आपका. D5 D1 ये $1, इट इज़ नॉट चेंज इट एवरीवेयर. ओके, सो द व्हाट इज द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग? इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, इफ वी वांट टू फिक्स एनी सेल, अगर हम किसी सेल को फिक्स करना चाहते हैं और रेस्ट ऑफ द वैल्यू विल नॉट चेंज इट, आफ्टर दैट वी आर यूजिंग इन दिस फॉर्मूला इज $D $1. और सेम अमाउंट पर अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल, तो जस्ट कॉपिंग दिस रेफरेंस यूजिंग द रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड पुट इट हेयर. ओके, व्हेन यू पुटिंग हेयर द हेयर, ऑटोमेटिकली द टोटल अमाउंट विल कम. गॉट इट और नॉट? Got it? इसका टोटल फॉर्मूला क्या होगा? D4 D5 D6, बट दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. और दिस वन वी हैव टू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग. ये सभी हमने कैलकुलेट किया रिलेटिव रेफरेंसिंग से. दिस अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट इन द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. गॉट इट और नॉट? चलिए अब हमें क्या करना है, एक बार डेफिनेशन को फिर से हम देखते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. When we do not want to change the address of a cell, हम किसी सेल का अगर एड्रेस नहीं चेंज करना चाहते, on copying the formula to another cell, किसी अनादर सेल में हम क्या करें, उसको कॉपी करें. To make the absolute reference, use the $sign before the column name and row number. ओके, तो before the column name और row number हमने क्या यूज़ किया है, कॉलम नेम क्या गया भी D1 डॉलर और $1. इस तरीके से फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स हो गया. चलिए नेक्स्ट रेफरेंसिंग पे आते हैं. इट इज़ कॉल्ड द मिक्स रेफरेंसिंग. It is the combination of relative and absolute values. ओके, फॉर एग्जाम्पल $A1 इज वेरिएबल, बट डॉलर अगर हमने बीच में यूज कर लिया तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया. ये क्या है, मिक्स रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है. अगर डॉलर आप पहले यूज करोगे तो वो वेरिएबल ही बना रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन डॉलर अगर बीच में यूज करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स. तो चलिए हम करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंस में आफ्टर गिविंग द 50 रुपीज़ इन एक्सपेंस विद द हेल्प ऑफ मिक्स रेफरेंसिंग. मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंस हम निकाल रहे हैं, 50 रुपीज़ क्या कर दे रहे हैं, एक्सपेंस हम किसी को दे दे रहे हैं. ओके, जैसे कि इस फॉर्मूला में देखिए आप, मैंने $C4 मीन्स दिस वैल्यू 200 में से मैंने चैरिटी अमाउंट को 50 रुपीज़ क्या कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ जैसे. ओके, तो 50 रुपीज़ का मतलब कौन सा है हमारे पास में सेल, D2. तो आप देखिए यहाँ पर D2 का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ लिखा $C4, मतलब ये क्या है, वेरिएबल, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, C4 C5 C6 C7 C8 C9. बट देखिए आप, ओके, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या नाम, चेंज होगी. तो यहाँ से क्या है कहना, $C4, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, $C5 $C6 $C7 $C8 $C9. बट दिस वैल्यू विल फिक्स्ड इट. D2 क्या है आपका, फिक्स है. तो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि D2 $2 $2 $2 में, अगर मैं 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ किसी को देना चाहता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, इक्वल साइन. आफ्टर दैट दिस वन सेल इज कॉल्ड एज C4, तो मैंने यूज़ की यहाँ पे $C4, बिकॉज मेरे को वेरिएबल बनाना है ये मिक्स रेफरेंसिंग के लिए, तो मैंने यूज़ किया $C4. आफ्टर दैट सॉरी C5, दिस वन इज C5 सेल माइनस दिस वन इज D2, तो मैं यूज़ करूँगा $2 बिकॉज मेरे को फिक्स करना है वैल्यू $2. देखिए आंसर में 100 माइनस 50 कितना हो गया, 50. अब डायरेक्टली हम क्या करें, रेफरेंसिंग को यूज़ करें और कॉपी कर दें इसको. तो आप देखते जाइए, फॉर्मूला और रेफरेंस अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज होगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द, देखिए यहाँ पर सब जगह D2 क्या है, फिक्स है आपका, बट ये वैल्यू क्या है आपकी, वेरिएबल है. दिस वन इज C1 C4 C5 C6 C7 C8 C9, दैट इज द एक्चुअल एक्सपेंस. ओके, अब हमें देखना है कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, तो जस्ट कॉपी दिस वैल्यू, okay, and paste it. Formula will automatically will change it. It means that 1000 means E4, this one is E4 E5 E6 E7 E8 E9, सभी का एक्सपेंस निकल गया. So for with the help of this table we can calculate the sales expenses. okay, हमने टोटल सबसे पहले सेल कैलकुलेट करी, देन टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट किया हमने, got it, after the incentive amount and then actual expenses. okay, so this is overall the concept of referencing.
ओके, तो व्हाट इज द रेफरेंसिंग? रेफरेंसिंग इज नथिंग एज टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सेल address will change it, formula will change it automatically. This is called as relative referencing. But in the absolute referencing, okay, if we do not want to change the cell address, अगर cell address हम change नहीं करना चाह रहे हैं, okay, तो we will use the dollar sign before the column name and row number, okay, then the value will not change it. This is called as absolute referencing. But in the mixed referencing, it is the combinations of relative referencing or एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. हेयर व्हेन वी फिक्स एनी वैल्यू तो डॉलर साइन हम बीच में यूज करें, और जिस वैल्यू को हमें फिक्स नहीं करना है वी विल यूज द वैल्यू बिफोर द वेरिएबल नेम. इट इज कॉल्ड द रेफरेंसिंग. गॉट इट और नॉट? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, फंक्शन. फंक्शन तो एम एस एक्सेल प्रोवाइड द यूज ऑफ द सम फंक्शन टू क्विक सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम. फंक्शंस होती हैं, जैसे मान के चले कि हमें एडिशन कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे यूज क्या कर लें? सम और रेंज. मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो प्रोडक्ट ऑफ रेंज. एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज और रेंज फॉर्मूला होता है हमारे पास में. तो रूल्स ऑफ फंक्शंस क्या है यहाँ पे? सबसे पहले आपके पास में कि अगर कोई फंक्शन बनाना है मैथमेटिकल वैल्यूज के लिए तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ईच फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन, वैलिड फंक्शन नेम लिखे हैं और रेंज वैल्यू लिखे हैं. तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे सेम फॉर्मूले में यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया था? 300. हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से. गॉट इट? डॉट. अब हमें ये टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल के लिए सबसे पहले कि रेंज अगर आप समझेंगे तो रेंज क्या है इसकी? देखिए, दिस वन इज C4 टू C9. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें इक्वल साइन, उसके बाद क्या लिखें? सम ब्रैकेट ओपन. आफ्टर दैट रेंज क्या हमारी? C4 से लेके C9 तक. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया C4. यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ में कॉलन को यूज़ करेंगे तो C9. गॉट इट? और इसको आप क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए. सॉरी, नॉट C4, दिस वन इज B4 ना. तो मैं इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ. दिस वन इज B4 से लेके B9 तक. तो दिस इज कॉल्ड द रेंज B4 टू B9. सॉरी, B9. गॉट इट? गलत हो रहा है, फिर से मैं करता हूँ. B4 टू B9. तो देखिए B4 से लेके B9 तक की पूरी वैल्यू क्या हो गई? हमारी सिलेक्ट हो गई. अब जैसे ही हम एंटर प्लेस करेंगे सम फॉर्मूला क्या करेगा? इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें दे देगा. गॉट इट? तो देखिए पुराना सम हमारा वापस आ गया. इन्हीं वैल्यू को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है, ओके, या किसी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मान के चले कि हमें इन दोनों सेल का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो जस्ट वी हैव टू यूज सेलेक्ट द सेल फर्स्ट, इक्वल साइन, ओके. यहाँ पर some formula we have to use it like that. Here the product or some function name is product. तो अगर हमें इन दो सौ का प्रोडक्ट चाहिए तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट. तो देखिए प्रोडक्ट मिल गया आपको यहाँ से, ओके. सॉरी, PRODUCT प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हमें अगर इन दोनों नंबर का हमें प्रोडक्ट चाहिए तो दिस वन इज B2 B4 और दिस वन इज B5. तो जस्ट रेंज क्या हो गई हमारी? B2 नॉट द B2, दिस वन इज B4 और मान के चले B6 तक चाहिए हमको, B4 टू B6. तो यहाँ देखिए आप B4 टू B6, ओके. जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये तीनों सेल आपस में सेलेक्ट हो गए, एंटर प्रेस किया तो ये मल्टीप्लाई होकर ये नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा. 15 टू 30 और 30 के साथ जितने जीरोज हैं सभी आप लगाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको प्रोवाइड हो गया. आई थिंक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. इसी तरीके से मान के चले कि हमें अगर एवरेज निकालना है कि ये पूरे नंबर का एवरेज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7. तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड द नंबर ऑफ कॉलम्स. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ओके. तो इन सभी को हम सम करके 6 से अगर डिवाइड करें तो हमें एवरेज आएगा. लेकिन अगर यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज का तरीका क्या है हमारे पास में कि जस्ट हमने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ लिखा एवरेज, AVERAGE, एवरेज. एवरेज निकालना है किसका? दिस वन इज D4 सेल एंड दिस वन इज D9. तो यहाँ लिख दिया हम D4 टू D9, ओके. तो D4 टू D9 पूरा सेल सेलेक्ट हुआ. देखिए एवरेज आया 385. डायरेक्टली हम कैलकुलेट करना चाहें तो सम में हम क्या करें? नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर दें, ओके. 2310. तो आप देखिएगा मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ. यहाँ पे मैंने यूज़ किया 2310 डिवाइड बाई 6.
तो देखिए 385 इज द आंसर इज हियर, इट इज कॉल्ड द एवरेज। ओके, इसी तरीके से हमें मैक्सिमम निकालना है कि दिस वैल्यू मैक्सिमम कौन सा है। ओके, सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज, इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो वैसे तो हम जानते हैं इट इज 250 इज द मैक्सिमम नंबर, बट अगर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे यूज करें मैक्स। ओके, और मैक्स में सेल नंबर कौन सा होगा हमारा, E4 टू E9, तो हमने यूज किया E4 टू E9। ओके, जस्ट प्रेस एट द एंटर, तो देखिए 250 हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर इसमें हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जस्ट यूज द मिनिमम। ओके, आफ्टर दैट राइट इट द रेंज, तो रेंज क्या है C4 टू C9, तो मैंने यूज किया C4 टू C9 एंड जस्ट प्रेस इट द एंटर, तो देखिए मिनिमम वैल्यू आ गई। तो 100 क्या है सबसे, 100 क्या है सबसे मिनिमम वैल्यू। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस विच आर यूजिंग टू द विच आर प्रेजेंट ऑन द एड्रेस बार्स फॉर्मूला बॉक्स। बेसिकली एक फंक्शन लाइब्रेरी है जहाँ पे ये सभी फंक्शंस क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। ओके, एक फंक्शन और भी है काउंट द नंबर्स, तो अगर काउंट नंबर हमको यूज़ करना है तो आप देख लीजिए, जैसे मान के चलिए कि इस रोज़ में कितने काउंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने काउंट है 6, तो अगर हम काउंट लिखाना हो तो इक्वल टू COUNT काउंट। ओके, रेंज क्या है हमारी यहाँ पर, तो रेंज की हम बात करें, दिस वन इज C4, दिस वन इज D4 टू D9, तो D4 टू D9। ओके, तो हम पहले ही से मालूम है 6 रोज हैं, तो भी 6 काउंट में आंसर आपको दे देगा। इस तरीके से वी कैन यूज इट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है फंक्शन लाइब्रेरी। तो फॉर्मूला टैब में जाइए, फंक्शन लाइब्रेरी में जाइए, सिलेक्ट एनी फंक्शन, ऑटो सम, लॉजिकल, डेट एंड टाइम, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो एक बार आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कहाँ जाना है, फॉर्मूला टैब के अंदर आपके पास में, तो आप चले जाइए कहाँ पर, मैंने कोई सेल सेलेक्ट किया मान के चले ये, और यहाँ चले गए हम फॉर्मूला टैब में। यहाँ देखिए ऑटो सम का ऑप्शन है आपके पास में, तो जैसे ही ऑटो सम आपने क्लिक किया तो वैल्यू दे रहा है कहाँ से कहाँ तक, ये क्या नाम है C13 से लेके C14 तक, जबकि हमें कैलकुलेट कहाँ से करना है C4 से लेके C19 तक, 9 तक। तो हम इस वैल्यू को जस्ट क्या कर दें, चेंज कर दें। ओके, तो C4 से लेके C9 तक हमने एंटर प्रेस किया, तो सेम रिजल्ट यू हैव टू गेट इट अगेन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्या नाम, ऑटो सम, रिसेंटली यूजिंग लॉजिकल, डेट एंड टाइम, लॉट ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शंस इज हियर, तो वी कैन यूज द दिस वे इन द फंक्शन लाइब्रेरी। गॉट इट और नॉट? सो वी stop this class in this moment is here, and we will continue this class, okay, for the next lecture. And please revise this topic properly and clear the concept of cell range, cell library. Okay, after that referencing, relative reference, absolute reference and mixed reference. Okay, so thank you very much.